Hello there. Welcome onto the show. Thank you for coming. Yeah. Thanks for inviting me. It's really feel nice actually. Uh, as per your conversation last time, so it's really feel good that you have doing such an amazing show. To that the peoples with a good experience and they enrich build their own platform and they will experience their own thoughts regarding what is the success, how to do it, and what is their journey. So ये Right. बहुत ही अच्छा platform है. I really like and I really appreciate you. So thanks for being me on the show. Thanks for inviting me actually. Yeah. नहीं 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 So आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी. So for the viewers who are watching the show right now, he has been on the platform for a while, and he gives pharmaceutical business related consultancy as well as normal business related consultancy. yes. So you guys can check out his channel because पहली बात तो uh, he's at 23,000 सब्सक्राइबर्स एंड उस चीज़ में पहुंचने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है एंड other than that he's doing already numerous amount of things, so you better check it out. तो आप एक बार अपना please introduce yourself to the audience and what you do on your YouTube channel and other than that also. So, guys, hello, welcome. So, myself, Amit Kumar Mane. I'm from Pune, Maharashtra. I completed my pharmacy. I completed Master of Pharmacy in Pharmaceutics and MBA also at the same time. So, after double post graduation, I do jobs in pharma industry and pharma marketing. And then after 2 years of experience, then I will immediately shift into my business. Then I start pharma retail, then I start pharma wholesale, and then also move into the pharma export. So all three segment I do simultaneously every day. So this is challenging also, but this has more good future regarding the pharma industry. There are numerous kinds of the business opportunity and job opportunity. So while I'm doing this, आई ऑल्सो कम टू नो दैट जो स्टूडेंट्स फार्मेसी करते हैं या फिर फार्मेसी में बिजनेस करना चाहते हैं, दो तरीके के अपॉर्चुनिटीज है. एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. So many students ask me regarding various job opportunities and business opportunities. I consult them directly. Whoever coming to me, I mean, जो मुझे पूछता था उसको मैं आंसर दे देता. लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को इसका फायदा हो सके. So that is why I started my YouTube channel named Things by Amit, where I Hmm. provide there all educational videos Hmm. regarding career opportunities after pharmacy, then business opportunities after pharmacy. So my main motto behind all these things is I want to create 1,000 pharma entrepreneur in India within a year. तो Okay. आई मूव अकॉर्डिंगली. और उसके बाद जो जैसे मैंने मेरा मोटो, जैसे जैसे चैनल बढ़ता गया वैसे मेरे पास लोग आते गए एंड देन आई विल गाइड अकॉर्डिंगली. एंड डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इंस्पायरिंग जर्नी. क्योंकि लोगों को इतना इनोवेशन है, लोगों के पास इतने आइडियाज है, बट देयर इज नो प्लेटफॉर्म. So Hmm. I provide them a good knowledge and also I provide them how to create a platform. जो लोग Hmm. खुद का बिजनेस, खुद का ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं हमेशा रहता हूँ. एंड फॉर स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, बिकॉज इन द इंस्टीट्यूट हमको कोई बताते नहीं कि जॉब कहाँ कहाँ पे लग सकता है, कैसे लग सकता है. सिर्फ हमें सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि इसको इतने पैकेज की जॉब मिला, बट कैसे मिला दे डोंट नो, एनी वन डोंट नो. सो आई Hmm. प्रोवाइड देम राइट गाइडलाइन for joining a dream company and doing it brightly. So All right. that's All it. right. Yes, guys. So you guys can check out his channel. जो भी आपको, अगर आप नए business हो and you want to start from, maybe you're shifting from a job, or maybe you're even just a student who wants to start his or her own business. This is a very good channel you can check out, and especially related to the pharmaceutical business. Yeah, मतलब he has explained each and everything related to pharmaceuticals and the whole business step by step. So a lot of videos you can check out on his channel. So all right, Amit, if I'm, for example, मेरा अभी जॉब था, ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ एंड
मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने होराइजन्स बढ़ाऊँ, राइट? तो आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, यू नो. सो पहली बात तो व्हाई शुड आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस इफ आई वांट टू? सी, बिजनेस और जॉब ये हमेशा एक फाइट लगी रहती है हर एक इंडिविजुअल में कि जॉब करे तो जॉब जॉब हमारी ड्रीम फुलफिल कर सकता है कि नहीं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि इसमें हमारे जो ड्रीम रहते हैं, हमारे हमको जो इनोवेशन चाहिए होते हैं, जो एनवायरमेंट चाहिए होता है, इट्स नॉट इन द जॉब. तो मोर शिफ्ट इनटू द बिजनेस. फॉर योर जॉब को लिमिटेशन बहुत होती है क्योंकि यू आर अंडर सम इंस्टीट्यूट एंड अंडर सम ऑर्गेनाइजेशन and you need freedom. If you need freedom, that time if you must need to do business. तो business क्यों करना है? तो business के कारण बहुत है. पहला है आपका ड्रीम कंप्लीट करने की. आपका ड्रीम क्या होता है? आपके कोई भी इंस्टीट्यूट आपकी ड्रीम कंप्लीट नहीं करती जब आप जॉब करते हो. ओनली बिजनेस विल डू दिस. वो आपको फ्रीडम उतना देता है, वो आपको रिस्क भी उतना लेना पड़ता है, बट बाकी थिंग्स मैं आपको बाद में जैसे बताऊंगा. बट द मेन थिंग्स इज आपको वो डिसीजन लेना है कि अगर आपको ड्रीम कंप्लीट करना है, आपको वेल्थ आपकी मेंटेन करनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको आपकी आइडेंटिटी बनानी है, सो यू नीड टू बी ए गुड वेल्दी पर्सन. हेंस आपको ड्रीम, आपके वेल्थ, आपको अगर आपकी कंट्री के लिए कुछ इनोवेशन करना है तो उसके लिए आपको कुछ नए आइडियाज लेके आने पड़ेंगे. तो ये आइडियाज लेके आप आपका खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं. साइमल्टेनियसली आपको एक अलग से कंट्री के लिए कुछ करते हैं तो वो अलग से प्राउड महसूस आपको होगा एंड डायरेक्टली आपका बिजनेस भी हो जाएगा. तो फ्रॉम स्मॉल एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बड़ा करना है. यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. बेसिक थिंग्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. There are many more things in the world you can do. Not in the pharma industry, बहुत सारी इंडस्ट्री में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली आपको उसका माइंडसेट वैसे होना है, बस आपको पहली रिक्वायरमेंट यही. Rightfully said. So for example, if I have a very small investment, हर चीज स्टार्ट करने के लिए एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, राइट? तो if I have a small investment और नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, मुझे किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए? और इवन इफ नॉट द टाइप ऑफ बिजनेस, हाउ शुड आई अप्रोच इट? एक्चुअली फ्रॉम लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट यही सबकी पहली स्टार्ट होती है. हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेल इन दिस केस. कि बहुत सारा सर्च करने के बाद हम देखते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, इतना टर्नओवर होना चाहिए तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे. हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आइडियाज तो बहुत है. लेकिन आज के समय में इन द करंट सिनेरियो यू कैन डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस. मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट. ओके, उसमें से पहला बिजनेस आता है कंसल्टेंसी. अगर आप आपकी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो, दूसरे को कंसल्ट कर सकते हो, आपके ब्रांड बनाने में कंसल्ट कर सकते हो. आई एम आल्सो डूइंग द कंसल्टेंसी वेयर आई प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द नॉलेज रिगार्डिंग फार्मा इंडस्ट्री. हम बेस से स्टार्ट करते हैं, आपको कौन सा भी बिजनेस हो वो सेटअप करने तक मैं कंसल्ट करता हूँ. तो दिस इज नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस. आपको कुछ करना नहीं, बट आपके पास बहुत सारा नॉलेज और डेडिकेशन होना चाहिए. आपकी बेसिक इमेज, आपको आप पे उतना ट्रस्ट होना चाहिए तभी लोग आपके पास आएंगे. देन नेक्स्ट इज आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. लाइक हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं किसी कंपनीज के एंड देन वी कैन कोलैबोरेट विद आवर फ्रीलांसिंग पार्टनर्स एंड देन वी विल डू दिस थिंग. नेक्स्ट है आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं. ये भी मैं करता हूँ एक्चुअली, ये अदर देन फार्मा इंडस्ट्री, लेकिन ये भी कर सकते हैं. देन आफ्टर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं. ड्रॉप शिपिंग यू कैन आल्सो डू. ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आप एज ए ट्रेडिंग काम करते हो. आपकी जो से रिक्वायरमेंट आती है वैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर से लेके जो कस्टमर होता है उसको दे सकते हो. ऐसी सारी चीजें होती है. अदरवाइज आप ब्लॉगिंग कर सकते हो. ब्लॉगिंग में क्या रहता है, आपके पास रिसर्च होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. उसके अकॉर्डिंगली आप खुद की एक वेबसाइट डेवलप करके ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो. और उसके अकॉर्डिंगली आपका टॉपिक थोड़ा नीश होना चाहिए. मतलब बहुत घिसा पीटा टॉपिक होगा तो लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं. अगर उसको थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने. बट अगर आपकी फील्ड में आप सच में मास्टर हो तो यू मस्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट. आपका खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं. तो इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं. आई ऑल्सो फील दैट जैसे आप ब्लॉगिंग की बात कर रहे थे, एंड आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी आ चुकी हैं इन एवरी फील्ड, स्पेशली इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंसल्टेंसी, राइट?
and right now we being on YouTube, we have a platform that अगर जैसे again जो आप कह रहे थे, अगर आपकी niche है उस चीज़ में, तो you can definitely give your opinion and you can guide people, and that can also be a side by side income for you as well, right? So yeah, that was a very nice answer. I think a lot of people will be able to understand. So yeah, so for example, if I am a new business, मैंने अपना business start कर दिया है, right? और I'm about to start it. बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है that because again most of the people, the private individuals, they don't have enough of funds with them, so उनको hesitation होती है कि या तो किसी private lender से लोन लें या तो बैंक से लोन लें. तो how do you come over this fear according to you? Actually, yeah, it's really good question क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर नए एंटरप्रेन्योर होते हैं लोन के लिए अप्लाई करते हैं इनिशियली, बट आई प्रेफर कि लोन ये एक ऑप्शन रह सकता है बट इट इज नॉट अ कंपल्शन. ओके, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें परफेक्ट हो कि नहीं वो आपको कैसे पता चल जाए, क्योंकि बैंक को तो लोन आपको, आप बैंक लोन देगी लेकिन आपको उसके रिटर्न देगा, उसकी गारंटी है आपके पास इनिशियल लेवल पे. तो इसके लिए आप ये एक ऑप्शन ये रखिए और लास्ट ऑप्शन रखिए, मैं बोलता हूँ, बिकॉज विदाउट टेकिंग लोन यू कैन ऑल्सो बिल्ड योर बिजनेस. इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आप डिसाइड करेंगे कि क्या, देन आफ्टर एक्सपीरियंस लेना है और उसके बाद स्टार्ट करना है. आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपकी सेविंग होगी, आपकी किस कौन से भी सोर्सेज से अगर सेविंग वो आती है तो उससे आप स्टार्ट कीजिए कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और आगे जाके आप अगर 1 या 2 साल में बिल्डअप करते हो और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई यू आर रेडी टू टेकिंग अ लोन एंड आल्सो फॉर द रिटर्न्स. ओके, तो अगर इसकी गारंटी रहती है तो देन यू कैन टेक लोन, बिकॉज बड़े बिजनेस अगर होते हैं तो वो लोन पे ही खड़े होते हैं. जो भी अगर आप इंडियन कितने भी बड़े बिजनेस देखिए वो बैंक से पैसा लेके बड़े होते, बिकॉज नो वन इन्वेस्ट फ्रॉम योर पॉकेट. ओके, बट ये एक अलग लेवल होती है जब आप वो स्टेज लेते हैं कि बैंक आपके पीछे लगती है कि आप लोन दीजिए, बिकॉज देर इज ऑल्सो टर्न ओवर इन योर इंस्टीट्यूट, नो प्रॉब्लम, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चल रही है, लेकिन अगर आपको एक्सपांशन करना है तो उसके लिए लोन लेना बहुत ही जरूरी है. तो मैं मानता हूँ कि लोन लेना इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट इनिशियली इसके बारे में मत सोचिए, बिकॉज आपके पास गारंटी नहीं होगी. अगर आप फेल हो गए तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट आपके सर के ऊपर गिरेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होते हैं. देन आफ्टर डिप्रेशन और फेल्यूर के बहुत वो तो अलग ही लेवल पे जाते हैं, तो बाद में आप बिजनेस नहीं कर पाओगे. सो दैट इज व्हाई बेस्ट ये है कि आप पार्टनर ढूंढ लीजिए, अदरवाइज इन्वेस्टर ढूंढ लीजिए. इफ यू हैव स्मॉल स्केल से आप स्टार्ट कर सकते हैं. इफ यू हैव सच बिग आइडियाज, यू हैव प्लेटफॉर्म, अगर आपके फैमिली बिजनेस है तो देन इट्स अदर थिंग, आप उस टाइम ले सकते हैं, आपका एक प्लेटफॉर्म बना रहता है. बट इनिशियल लेवल पे बहुत सारे खर्चे आते हैं, आगे जाके क्या चैलेंजेस है आपको मालूम नहीं होता है. सो इन दैट केसेस लोन इज नॉट गुड ऑप्शन एट इनिशियली. हाँ, बिकॉज अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स. अभी आजकल क्या 7-8% से ऊपर 10% तक जाता ही है बैंकिंग के उसे. एंड इफ यू टेक फ्रॉम प्राइवेट लेंडर्स तो उनका तो अलग ही, मतलब वो स्टिल 14 एंड इवन मोर देन दैट. तो दिस इज वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट इंडिया ऑल्सो, कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना हाई है. वरना इफ यू गो टू द US, ओनली 1% ओवर देयर. तो डिफरेंस काफ़ी आ जाता है. बट या अगेन, जैसे आप कह रहे थे, अगर आपका विजन सही है एंड यू हैव अ प्रॉपर बिजनेस प्लान, तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू टेकिंग लोन्स, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली उसको करोगे. बट जैसे आप कह रहे थे कि अगर आप स्मॉल वेंचर हो, देन ब्रिंग इन अ पार्टनर एंड bring in investors, so that can also help. Coming back to like people in jobs, and if I am a person trying to get out of a job and मेरे को अभी business करना है, चाहे कोई भी field हो, so what things me as a person should be ready for? क्या चीजें मेरे को tackle करनी होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे होता है कि इनिशियल लेवल पे बिजनेस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. अगर हम जॉब करते हो बिजनेस करने का सोच रहे हैं कि हम जिस फील्ड में है
उस फील्ड का सोचते हैं। बट हम जैसे जॉब की बात करेंगे, अगर हमारे फार्मा इंडस्ट्री की बात करेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट्स है, लाइक प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट अगर हम वहां पे काम करेंगे तो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है, कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक कैसे मैनेज होता है, ये Hmm. सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन काम करते हो, दे यू डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग। एंड ऑल्सो ये बहुत बड़ा, एक्चुअली ये स्टडी बहुत बड़ा है, ये ऐसे इनिशियल लेवल पे या एक दो साल में होने वाला नहीं है। सो बेसिकली अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, नो इश्यूज। अगर आप जॉब में अच्छे हैं तो आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, वहां पे भी अच्छा पैकेज मिल सकता है, नो इश्यूज। बट यू टू डू नीड टू डू बिजनेस, ओके। अगर हमको फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल के इश्यूज है, तो हम इनिशियल लेवल पे जॉब करते हैं, और जॉब करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। जॉब में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास उसका अलग माइंडसेट होता है, क्योंकि हम जॉब लेवल पे जाके एक कंफर्ट जोन में जाते हैं, जब हमको सैलरी मिलती है, बाकी एक्सपेंसेस हमारे कवर होते हैं, और हाँ, एक वो कंपनी भी हमको बहुत लाइफस्टाइल सारी वैसी ही चीजें हो देती जाती है। राइट, राइट, राइट। है। लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है, और हम थिंकिंग पावर हमारी वो सोचने की कम कर देती, मतलब थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है कि बिजनेस क्या करना है। अभी तो लाइफ अच्छी चल रही है, सो व्हाई वी कैन स्विच ऑफ एंड डू बिजनेस। क्योंकि ये एक हम्म। बड़ा रिस्क है एक्चुअली। जब हम कुछ स्विच करके दूसरी जगह जाते हैं, इसका मतलब हम कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं। और लाइफ में कंफर्ट जोन नाम की चीज होती नहीं है। जब जहाँ पे आप बेस्ट हो वो वहां तक जाने के लिए आपको स्ट्रगल 100% करना है। आपको कभी भी पता नहीं चलेगा इस लेवल पे कि आप किस चीज में बेस्ट हो, कौन सी चीजों में बेस्ट हो। क्योंकि एक जॉब अगर आप करते हो तो एक प्रोफाइल डिटरमाइन हुआ होता है, क्योंकि ये आप नहीं तो दूसरा कोई करता है तो वो ही करता है, ऐसा नहीं कि आप अलग से कुछ कर रहे हो, ठीक है। हम्म। लेकिन बिजनेस में ऐसा होता नहीं। तो इसके लिए आपकी नीश, आपका आइडेंटिटी, आपकी जिस चीज में इंटरेस्ट है वही काम आपको करना है। जॉब कीजिए, आप कम इसमें पेमेंट में कीजिए, नो इश्यू। बट आप डेडिकेशन लेके कीजिए, हर एक दिन क्या सीखा आपने, आपका हम्म। गोल कितने क्या है, और हर दिन आप क्या सीखने वाले हो। और 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल तक आपको कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस में रहना है। एंड देन हम्म। आफ्टर यू कैन स्विच योर जॉब, बिकॉज यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी पूरी आपके पास रह जाएगा, लर्निंग प्रोसेस, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगी। बिकॉज इनिशियल लेवल पे डायरेक्टली आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस अगर आप बिजनेस करते हो, तो वहां पे भी आपको वेटिंग पीरियड है। कौन सा भी बिजनेस करना है तो वहां पे कम से कम 3 या 4 साल का वेटिंग पीरियड है, जब तक आपके जितने इन्वेस्टमेंट किए वो पैसा निकलने में उतना टाइम आपको लगता ही है। तो हम्म। इसके लिए आपके पास कुछ रोलिंग मनी भी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर नॉलेज रिगार्डिंग योर बिजनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड मार्केट एनालिसिस आप जो कर रहे हैं वो सच में आने वाले 5 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा, वो मार्केट सिनेरियो कैसे चेंज होते जा रहा है, उसके अपडेशन लर्निंग कंपल्सरी। क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट किया अब लर्निंग प्रोसेस बंद हो गई, ऐसा नहीं है। रोज के रोज नए नए अपडेट्स आपको लेने हैं, मार्केट एनालिसिस करना है, और उसके अकॉर्डिंगली चलना है, तभी आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल लेवल पे जाएगा। ट्रू। राइट। वेरी वेल सेड। सो ठीक है, बट कमिंग बैक टू लाइक स्क्वायर वन, related to you, how did you get into the pharma industry and why? Yeah, actually, this is due to my family first of all, because my father is pharmacist. He's a government pharmacist actually. तो Okay. इसके लिए फार्मेसी के एनवायरनमेंट तो घर में थी ही। तो फार्मेसी एक्चुअली ये प्रोफेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशन है, और फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, बहुत बार बोला तो जाता है, क्योंकि हमारे जो फार्मेसी रहते हैं, रिटेल फार्मेसी अगर आपने देखा होगा तो कभी बंद नहीं रहते, इवन इन कोविड-19 ऑल्सो। सो दिस इज नॉन शट डाउन बिजनेस, ऐसा Yes. है। तो हमारे फैमिली में तो वैसे ही चलता रहता है कि चलो फार्मेसी एक अच्छा, ऑलरेडी हमारे घर में नॉलेज थी, थोड़ी शेयर होती थी, और ये बिजनेस भी अच्छा है, इसके लिए आई एम गोइंग इनटू द फार्मेसी। बट आफ्टर कमिंग इनटू द फार्मेसी आई वेरी वेल नो मेनी रिगार्डिंग, दिस इज अ हिडन फील्ड। देखो, अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में कुछ भी बिजनेस करना है, तो अगर आपको कोई भी सर्च करो तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस इज मोस्टली फील्ड है, ये अलग फील्ड है, यहाँ पे आपको शेयर कुछ भी नहीं होता। इतनी इन्वेस्टमेंट कितनी कहाँ पे हो रही है, कौन सी कंपनी कितने शेयर्स अच्छे चल रहे, किस कंपनीज के कितने, कौन सी कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, इंपोर्ट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट कितना हुआ है, एंड नए मोलिक्यूल्स कौन से आ गए, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैसे चल रहा है, ये सारी Hmm. चीजें
अभी भी पता नहीं चलती। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो कौन सी बुक पढ़ूं, हम्म कौन से तो आप लिटरेचर दीजिए, लेकिन ऐसा लिटरेचर ऐसी बुक होती ही नहीं, बिकॉज हम्म हर मार्केट सिनेरियो चेंज होते रहता है, ये एक्सपीरियंस से ही पता चल जाता है। ट्रू तो ये मैंने देखा कि फार्मा इंडस्ट्री में ये सारी चीजें अपडेट रहना जरूरी है, खुद को इंफॉर्मेशन लेके वो आपको शेयर करनी जरूरी है। कोई हम्म शेयर नहीं करेगा, बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास इतना नॉलेज है, तो हम शेयर करेंगे तो नॉलेज वो डबल हो जाएगा, उनकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली किसी की ड्रीम अगर कंप्लीट होती है हमारे नॉलेज से, तो वो नॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा। सो इसके लिए मैं हमेशा लर्निंग प्रोसेस रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ नई चीजें अपडेशन हमेशा सीखता रहता हूँ, एंड आई विल प्रोवाइड देयर इनटू द नीडी पर्सन। तो इसके लिए ये दोनों चीजें मेरी होती है, एक तो लर्निंग मेरी खुद की भी होती है, और दूसरों को लर्निंग देके मैं उनको भी बिल्डअप कर देता हूँ। और मेरे मिशन जो रहता है 1000 एंटरप्रेन्योर हम्म का, तो वो भी कहाँ पे तो उस पर भी हेल्प मिलती है। right. So do you believe that getting into the pharma business according to you was correct in the way कि उसमें कुछ आपको extra benefits दिख रहे हैं money wise, monetary wise, or maybe you can explain why you are getting into it, you know, so that the public can understand कि ये pharma ठीक है, pharma का मालूम है, but according to the revenue that a person generates while being in the pharma Yeah. industry, how is it better than few of the other things? या एक्चुअली फार्मा बिजनेस इज बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं। अगर आप बिजनेस फील्ड में आओगे तो पता चल जाएगा। फार्मा रिटेल इज द ओनली स्मॉल स्टेप, ये इनिशियल है। उसके बाद आप फार्मा होलसेल कर सकते हो, उसके बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप पीसीडी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, मेडिकल डिवाइसेस कर सकते हो। तो इसमें हर एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड रहता है कि क्या आपको करना है। और यहाँ पे लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। आप रिटेल स्टोर से स्टार्ट करो, एक आइडियल वे में बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाओगे। रिटेल स्टार्ट करना है, रिटेल स्टार्ट कम से कम 5 साल स्टार्ट करना है आपको, सक्सेसफुली प्लान से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपके खुद के एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करो। फ्रेंचाइजी मॉडल हर एक बिजनेस में होता जा रहा है, और फार्मा बिजनेस में भी ये सक्सेसफुल है। और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल क्या है, वो जेनरिक फिर अभी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, वो स्टैंडर्ड का भी, जैसे आप देखते हैं मेड प्लस, अपोलो Yeah. या संजीवनी हेल्थ केयर, या तो ये कैसे चेन फार्मेसी है, ये एक फार्मेसी के मल्टीपल चेन फार्मेसी उन्होंने डेवलप की, तो वैसे आप कर सकते हो। इसमें आपको क्या रॉयल्टी बिजनेस है, ये आप जनरेट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आपकी खुद की फार्मेसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसको, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, ये आपको फॉर्मूला रखे, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको हर एक चीजों से स्टडी करना है। ये बिजनेस रिटेल चेन का है। देन होलसेल कर सकते हो। होलसेल का क्या है, अगर आप किसी भी रनिंग कंपनी, मोस्ट ऑफ द 10 एमएनसी जो इंडिया की है, जिसमें आती है अल्केम आती है, सन फार्मा आती है, उसके बाद सिप्ला, ऑरोबिंदो कंपनी आती है, कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट फार्मा, मतलब ये कंपनीज है, ये बहुत सालों तक चलने वाली है। अगर आप इन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो उनके प्रोडक्ट हमेशा चलने वाले हैं हर एक काउंटर के, क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग होती है, और यहाँ पे मार्केट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये कंपनी के प्रोडक्ट, जस्ट लाइक अगर आपने देखा कि प्रोस्टिन प्रोडक्ट है ग्लैक्सो का, वो कितने साल चलेगा मालूम है आपको, कभी डेट होगा बिल्कुल नहीं, ये अपडेट होता रहेगा, लेकिन ये ब्रांड चलता रहेगा। डोलो 650 होगा, बीकासूल हो गया, मतलब ये जेनेस्टिन हो गया, ये जो ब्रांड है, मैं एक दो ब्रांड ही बता रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांड ऐसे जो हमेशा चलते आ रहे हैं और इसके आगे भी चलेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर इस कंपनी के लेंगे तो डेफिनेटली आपको लाइफ टाइम वो रॉयल्टी मिलती जाएगी। इसके बाद आपके खुद के ब्रांड अगर मार्केट में लेके आ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंपनी के ब्रांड है, मेरे ब्रांड कब आएंगे ब्रांड मैन्युफैक्चर, ये फार्मा, तो फार्मा में क्या होता है, आपके मैन्युफैक्चर यूनिट चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप विदाउट मैन्युफैक्चर यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं, Contract ब्रांड ला manufacturing. सकते हैं मार्केट, राइट, यू कैन से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, ये इससे आप आपके ब्रांड ला सकते हो, उसके कंपनी की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग मटेरियल आपके पास अच्छा होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप मंगा रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इस चीजों पे गौर करेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं। अब कम इन्वेस्टमेंट है, आपके पास बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पीसीडी फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ये आप कर सकते हैं। कम से कम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके आपको थर्ड पार्टी में शिफ्ट होना चाहिए।
हम्म और बाकी रहा एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एज ए ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर ओन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट योर फार्मा प्रोडक्ट्स। लेकिन हम्म इसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स या एंटरप्रेन्योर मुझे मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मतलब रोज की दो चार रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट की होती है, एक्सपोर्ट करना है, लेकिन होता है क्या है कि उनके पास प्रोडक्ट नहीं होते, उनके पास कंट्री नहीं है। हम्म आई विल मैनेज ऑल थिंग्स। मैंने हम्म अभी रिसेंटली एक फर्म स्टार्ट किया है जो इकिगाई कंसल्टिंग फर्म है, फार्मा एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पे मैं कंसल्टिंग करता हूँ, जो मैं कंट्रीज आपको ढूंढ के देता हूँ, कौन सी कंट्री में डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है। तो उससे हम्म हेल्प क्या होती है कि आपको मार्केट में बहुत एनालिसिस करने के बाद ये चीजें पता नहीं चल जाएगी, हम्म क्योंकि ये जो हिडन डेटा रहता है ये आपके पास आता नहीं है। दिस इज ये तो एक कुछ एसोसिएशन होती है, चेंबर ऑफ एसोसिएशन होती है, गवर्नमेंट की बॉडीज होती है, उनके पास ही रहता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके पास वो डायरेक्टली रिक्वायरमेंट आ सके कि ये रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्ट की, तो अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट यूर एक्सपोर्ट। ओके, ये ट्रेडिंग हम्म में हो गया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो तो ये थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन यू कैन स्टार्ट आल्सो। हम्म तो मैं बेसिकली बोलने का यही मतलब है कि फ्रॉम 1 lakh to 1 CR you can do your business. Choice is you. हम्म For the people who don't know much about what a stockist is, what a distributor is, how can you explain them in a very layman language for some of our viewers Okay. Yes. in this pharma industry? या फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में सप्लाई चेन कैसे चलती है इसके बारे में बहुत ही सिंपल है। देखिए, कंज्यूमर तक आने से पहले इसको बहुत सारी जगह से जाना पड़ता है, कोई से प्रोडक्ट। इट्स लाइक यू कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने के बाद वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाने के लिए पहले आता है C&F। C&F आने के बाद कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ये सिर्फ कंपनी के स्टॉक रखता है। दिस इज इन बिटवीन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर। C&F का काम यही है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर जैसे मैंने बताया कि कौन सी भी कंपनी के लिए एक हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, कंपनी अपॉइंट करती है कि आप इस एरिया के पर्टिकुलर एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर हो, सो यू कैन सेल योर मेडिसिन टू रिटेलर। और डिस्ट्रीब्यूटर से आते हैं रिटेलर के पास, एंड फ्रॉम द रिटेलर यू कैन डायरेक्टली टेक फ्रॉम द रिटेल, मतलब ये कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो ऐसे सप्लाई चेन रहती है और बहुत सारी कंपनी की ऐसी ही फॉलो है। जस्ट ऐसा होता है कि कई बार C&F नहीं रहते तो वो सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं, हम्म मतलब नाम तो वही है, काम तो वही करेगा, मतलब थोड़ा सा चेंज होता है नॉमिनेशन, बट बाकी सेम ही रहता है। सो ये ऐसे फ्लो है, तो इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आपके पास आता है। what is the difference between a super stockist and a normal stockist? या सुपर स्टॉकिस्ट वो होता है कि कंपनी देखो, एक कंपनी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर सकती है, एक स्टेट के लिए भी एक सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट कर सकती है। तो यू कैन इमेजिन कितना एरिया कवर करना है उसको, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो वो एक ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कैसे होता है, आप दूसरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, आप जो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो उसी कंपनी की दूसरा भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है। लेकिन सुपर स्टॉकिस्ट में ऐसा नहीं होता, एक ही सुपर स्टॉकिस्ट होता है। इट्स काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस सुपर स्टॉकिस्ट। तो कंपनी के डायरेक्टली मेडिसिन या कोई भी हो, सर्जिकल हो, डिवाइसेस हो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जो डायरेक्टली सुपर स्टॉकिस्ट के पास आएंगे, ही हैज अथॉरिटी टू सेल। डिस्ट्रीब्यूटर नो, कंपनी किसी के पास नहीं देगी स्टॉक, सिर्फ सुपर स्टॉकिस्ट के पास देगी। तो ही इज हायर अथॉरिटी, देन कम इनटू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड दे क्रेडिट। All right, all right. So now that we're talking about YouTube, so how does this YouTube help you right now? या यूट्यूब हेल्प मी रियली लॉट। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि चैनल स्टार्ट करने के बाद कि इतनी रीच मिल सकती है, एंड देन आफ्टर इतना बाकी चीज, मतलब रेवेन्यू जो आप पाए थे, बट इतने लोगों से कनेक्ट हो सकता हूँ मैं। एंड हमारी नॉलेज इतनी शेयर होने के बाद, इतना नॉलेज लोगों को मिलने के बाद भी वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्योंकि मुझे हफ्ते या 2 हफ्ते में किसी का इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज आता है कि आई स्टार्ट माय न्यू बिजनेस फ्रॉम योर गाइडेंस ओनली। तो उसके बाद बहुत अच्छा लगता है कि बिकॉज हाँ, I'll also give a bit of a background story क्योंकि before calling him onto the show, I was personally मतलब I have a few family members who are in the pharmaceutical business. तो
मैंने एक दो चीज़ें सर्च करी थी कि सुपर स्टॉकिस्ट क्या होता है, स्टॉकिस्ट क्या होता है, ठीक है. देन योर वीडियो केम, तो देन आई स्टार्टेड वाचिंग यू फ्यू ऑफ योर वीडियोस. आई वाज लाइक कि हाँ, मेरे को उस टाइम सारी चीज़ें समझ में आ गई थी व्हाट यू ट्राई टू कन्वे इन द वीडियो. बट देन उसमें मेरे दिमाग में ये था कि नहीं यार, आई थिंक आई शुड कॉल हिम ऑन द शो ऑल्सो. तो या, एंड दैट्स हाउ वी मेट. सो या, कमिंग बैक टू what you were saying. या तो बेसिकली ऐसा एक यूट्यूब का बेनिफिट्स है. देन आफ्टर यूट्यूब के बेनिफिट्स लोगों के लिए ज्यादा हो, ऐसी मेरी हमेशा सोच रही थी. तो इसके लिए मैं कुछ लोगों को जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली उनके लिए बुक्स मैं लिखता हूँ एज अ ऑथर. आई रोट ई बुक्स रिगार्डिंग क्लिनिकल रिसर्च and also interview guidelines for the students. All pharmacy students, all kind of the sectors are covered. Almost 11 sectors are covered. तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए अच्छा मटेरियल तो मैं देता हूँ, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. एंड मेनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बुक, ओके, बाय रीडिंग दिस बुक. उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च पे बुक आई थी. एंड देन après करंटली मैंने डिजिटल कोर्स बनाया. सो इंडिया का ये फर्स्ट डिजिटल कोर्स है जो बता रहा है कि हम रिटेल स्टोर कैसे स्टार्ट करना है फ्रॉम जीरो एक्सपीरियंस. किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, स्क्रैच से स्टार्ट किया मैंने ये कोर्स जो एडवांस लेवल तक लेके गया. मतलब Okay. आप स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीपल स्टोर कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने बताया. सो दिस इज अ वेरी नाइस रिस्पॉन्स एक्चुअली. बहुत सारे लोगों ने इसको परचेस तो किया बट दे स्टार्ट देयर बिजनेस एज वेल. तो यही एक यूट्यूब की जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती. उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की. सो यूट्यूब से मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने के बाद ब्लॉग्स में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि फॉरेन से बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो उनको हिंदी लैंग्वेज पता नहीं, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. तो फॉर दैट पर्सन आई डू ब्लॉगिंग, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि सिर्फ इंडिया के लोग देखे. यूएस, यूके, यूरोप, कनाडा, फिलीपींस से मुझे कॉल आता है. Exactly. So they are also, yeah. They are talking about pharma business. How can we do this? How to क्योंकि इसके साथ कोलैबोरेशन के भी मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं. आई डू कोलैबोरेशन आल्सो विद न्यू स्टार्टअप. सस्ता सुंदर ये एक स्टार्टअप है. उसके बाद 1mg है. उसके बाद एम स्वाइप है. उसके बाद रिसेंटली मैंने मेडी फार्म ये से स्टार्टअप. Okay, you worked with 1mg also. या 1mg के साथ भी मैंने कोलैबोरेशन किया था. लास्ट Okay. वीक में ही किया था. Okay. या बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो हेल्थ केयर फार्मेसी से नीश है, क्योंकि मैं बिजनेस के रिगार्डिंग बनाता हूँ. तो उनका ये मानना था कि ये आपकी वीडियो थ्रू चीजें प्रमोट हो जाए जो नए आप जो प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं. तो ये भी मेरा एक एम है कि हमारा चैनल और इतना बढ़े कि लोगों को तो हेल्प हो सके और आपके प्रोडक्ट भी अच्छे से प्रमोट हो सके. हर राइट कस्टमर. So B2B business I will do and B2C also. So Right, both way right. I will do this. Yeah, I'm trying my best every time. All right. मेरे को भी वही लगता है that आपका, because I'll be very honest, मेरा जो YouTube चैनल था, I wasn't able to find my niche, you know. I was doing various things here and there, and but once I knew कि last year, especially during the lockdown, that मेरे को एक चीज़ स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी ऑन द यूट्यूब चैनल. आई मीन दिस इज लाइक फ्री एडवाइस टू पीपल ऑल्सो हु आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यार हमें अपना यूट्यूब चैनल भी बनाना है और उसको किस हिसाब से रखें. माई आइडिया वुड बी कि आपका जो पूरा जॉनर है आपका यूट्यूब चैनल का, वो एक ही पर्सपेक्टिव का होना चाहिए. डोंट ट्राई टू मिक्स इट अराउंड. इवन अगर एंटरटेनमेंट पर्पस का हो गया, बट उसका नीश एक होना चाहिए. For example, if you have a YouTube channel, उसमें you're only giving business consultancy advice and pharmaceutical related, right? And I think that is how things will work, right? So this is one thing I really wanted to. And मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि why isn't your YouTube channel not working, this and that. I was like कि because मैंने starting में थोड़ा सा confusion हो गई थी कि what my channel is about. But now that my aim is कि I bring upon new people like you know, onto the show so that they can convey their own message. So that is my niche, right? So Yeah.
Yeah, if you have a niche, if you have a talent, if you have a skill, आप उसका फटाफट से जाके यूट्यूब चैनल बना दो. That's the first step. 100%. My mother is also actually a doctor. She's a gynecologist. I have told her also that क्योंकि आपका focused वो है, मतलब it is your niche, you are a doctor, you can give consultancy, तो just start a YouTube channel, उसमें कोई problem ही नहीं है, and वो 100% चलेगा भी, you know. So right, okay. So okay, you're consulting people, you are in the pharma industry also, doing other businesses, running a YouTube channel, getting so many Instagram, messages, followers and stuff like that. So how are you able to manage all of this? And you have to take out your videos on YouTube also. Yeah. So how do you manage all of it? Yeah. This is no any formula actually regarding. मैं जो आता हूँ वो एक्सपेक्ट करता हूँ. पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब थोड़ा टाइम उस टाइम भी नहीं था. टाइम होता नहीं है लेकिन निकालना पड़ता है एक्चुअली. तो अगर आपको करना है तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें बदलती रहती है. शुरुआत में जो चैनल बना था तो उसके लिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं निकालता था. हफ्ते में 1 या महीने में 2 वीडियो स्टार्ट करता था. और उसके वहां पे भी मुझे पता नहीं था कि मेरी नीश यहाँ पे फार्मा है या हेल्थ केयर है, न्यूट्रिशनल है. बहुत सारी चीजों पे मैंने स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया. And after 6 months, I get a good kind of views in one videos regarding career in research and development in pharma industry. And then after I will start working on that one career regarding. And then after I start also simultaneously. तो ऐसे करते करते वहां पे मुझे पता चला कि कितनी कंसिस्टेंसी जरूरी है. सिर्फ नॉलेज होना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंसी भी होनी बहुत ही जरूरी है. लोग आपका वेट करते हैं आपकी वीडियोस की. तो अगर आपको उस टाइम पे वो डिलीवरी आप नहीं दे पाए, सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे. तो मेरी यही कोशिश रहती है कि कंटिन्यूअसली वो इंफॉर्मेशन देते रहो. तो इंफॉर्मेशन मिलती है, लोग चैनल पे आते ही है. अब मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तो सोशल मीडिया वर्क है लेकिन ऑफलाइन भी वर्क बहुत है. अब मैंने सुबह स्टार्ट की जर्नी, मतलब डे स्टार्ट होता है तब मैं कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, सुबह वर्कआउट बुक्स. उसके बाद कॉल्स होते हैं तो सुबह 9 से 10 बजे तक मैं कॉल का टाइम देता हूँ, जो कंसल्टेशन के लिए कॉल होता है. एंड रिगार्डिंग बिजनेस के लिए कुछ रहते. अगर स्टूडेंट हो तो मैं कभी भी उनको पेड कंसल्टेंसी नहीं देता, बिकॉज एट दैट लेवल उसको गाइडेंस देनी जरूरी है. बिकॉज अगर बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस करना है उनको, सच में उनको कंसल्टेंसी प्रॉपर प्रोफेशनल से चाहिए, देन आई विल गो फॉर द पेड कंसल्टेंसी. तो उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक वहां पे मेरी शॉप है रिटेल एंड होलसेल की. I do that business, and simultaneously I also work on the internet to search new things, update information. And 2 to 5 ये जो पीरियड रहता है यहाँ पे मैं अलग बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का वो करता हूँ. एंड आफ्टर मैं ब्लॉग्स का भी काम करता हूँ. एंड देन आफ्टर कंटेंट जो राइटिंग होता है, नए वीडियोस कौन से आने वाले उसके रिगार्डिंग कंटेंट बनाना, ये काम रहता है. तो ये काम इतना अभी पहले इतना ज्यादा वर्कलोड नहीं था, लेकिन अभी 2 या 3 महीने के पहले से इतना ज्यादा वहां पे फोकस करना पड़ रहा है कि एक्चुअली मुझे डेडिकेशन से काम करना आता है. मतलब ये सीख रहा हूँ मैं एक्चुअली, क्योंकि लेकिन 24 घंटे भी कभी कभार कम पड़ देते. सो इसके लिए मैंने एक टीम रख ली अभी 2 महीने पहले. सो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स देखती है, जो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ब्लॉगिंग हो गया. सो वो अकॉर्डिंगली मैं कंटेंट देता हूँ. सो अकॉर्डिंगली दे विल पोस्ट. एंड यूट्यूब के मैं वीडियोस देता हूँ, दे विल पोस्ट. तो बाकी चीजें वो देखते हो. इसके बाद रिसेंटली मैंने वेबिनार स्टार्ट किए कॉलेजेस में, जो फार्मेसी कॉलेजेस है उनको मैं गाइडेंस करता हूँ कि करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए 2 दिन के वेबिनार रहते हैं. तो मैंने अब तक 5 कॉलेजेस में वेबिनार किए, पुणे एंड नियर बाय एरियाज में. सो मैं पूरा महाराष्ट्र और देन पूरा इंडिया कवर करना चाहता हूँ फार्मा इंडस्ट्री में जितने हैं. तो वहाँ पे मैं अब मेरी इंफॉर्मेशन देता हूँ. वहाँ पे स्टूडेंट्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है एंड दे एप्रिसिएशन भी बहुत होता है. मुझे कल पिछले हफ्ते ही मैंने सातारा कॉलेज में किया था, तो मुझसे बहुत सारे कॉल्स आए कि मुझे जितना मालूम नहीं था उतना सारा आपने बताया, जो मुझे कभी पता भी नहीं चलता था. तो मेरी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को दे. जो चैनल पे उनको तो मिल रहा है,
लेकिन Hmm. अदर देन चैनल इंस्टीट्यूट में जाके मैं वो करता, मतलब ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ. एंड देन Hmm. आफ्टर माई प्लानिंग फॉर आफ्टर 2 months फॉर पॉडकास्टिंग, जहाँ पे मैं सारे हेल्थ केयर सेगमेंट के में जो काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल सेगमेंट पे, फार्मा इंडस्ट्री पे, तो वो मेरे Hmm. पॉडकास्टिंग में आएंगे. मतलब वो अलग से प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें लिए काम चल रहा है. तो डेफिनेटली दैट विल आल्सो वर्क में इंफॉर्मेशन शेयर करना. ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है इन दिनों, बिकॉज जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है. एनीवन ऑन द इंटरनेट जो लिखता है, उन्होंने उसके माइंड में क्या है, इसके अकॉर्डिंगली लिखा रहता है. बट आपको क्या चाहिए, ये करेक्ट राइट कंटेंट आपको मिलना जरूरी है. सो यही चीजें मैं देने की कोशिश करता हूँ. सो बेसिकली आफ्टर 3 से 5 बजे तो ये काम, देन 6 to 11 मेरे शॉप फिर से स्टार्ट होता है. तो आफ्टर 11 आई डू सम वीडियोस. 11 से 1 बजे तक मैं वीडियोस करता हूँ, कंटेंट पे काम करता हूँ. एंड देन आफ्टर आई विल पोस्ट, एंड देन दिन खत्म. ऐसे मेरा कंटिन्यूसली काम चलता रहता है. बट बेसिकली बहुत मजा आता है, हर दिन मजा आता है, क्योंकि मेरी मुझे कुछ वजह होती है जब स्टार्ट होता है डे, तो उसमें क्या करना है, ये मुझे पूरा मैप मेरे सामने रहे. हाँ, तो एग्जैक्टली, इट्स रियली बिकॉज इंटरेस्टिंग. दैट इज द ओनली वे आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हो. वरना अगर उस चीज का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, अगर आपका कोई प्लान ही नहीं है कुछ करने का, तो आप कैसे क्या एग्जीक्यूट करोगे? एंड आपके पास तो खुद लाइक लिटरली नॉट इवन टेकिंग ऑन 1 minute, यू नो. सो yeah, that's very nice. And abhi bhi you're saying that you have future ventures also, and podcasting ka bhi karna hai wo. It's a lot of things. But well, yeah, I would say that if you have the zeal and motivation hai, so you can do anything you want to do, right? So regarding 2020, how was your 2020 एक्सपेक्टेशन? मतलब कुछ पूरी दुनिया का तो मतलब nobody expected that 2020 would go that way, right? It affected everyone. So how was your 2020? And did it somehow help your social media in a certain way, or was it all wrong? Everything went wrong for you? या 2020 इज वर्स्ट ईयर फॉर होल वर्ल्ड. ये तो सच बात है. लेकिन इसने बहुत कुछ सारी चीजें सिखाई. हर कोई चीज किसी वजह से होती है, हर एक की वजह है, तो उसको हमको जानना जरूरी है. तो अपडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिखाए. हम जिस वे से चल रहे हैं वही हमेशा काम करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमको अपडेट रहना है और अकॉर्डिंगली चलना है. हम फॉलो हो जाएंगे तो उसके बाद उसके काम भी करना है, चलना है. ये चीजें हमको हमेशा लाइफ टाइम उतनी हमारे अंदर करेज होना चाहिए, लाइफ टाइम होना चाहिए. कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा होगा. सो रिगार्डिंग ये तो पूरी सारे लोगों को वो तो लेसन मिल गया, लेकिन रिगार्डिंग मी मुझे भी बहुत सारे लेसन मिले, क्योंकि फॉल डाउन हुआ था. बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन. इवन दो हमारी टेस्ट स्टार्ट थी, लेकिन क्या था कि लोगों को मजबूरी से बहुत सारी चीजें लेनी पड़ रही थी, बिकॉज देयर इज मच फाइनेंशियल बर्डन इन द पीपल. क्योंकि लोगों के जॉब्स नहीं थे, घर में बैठे थे, उनको मास्क, सैनिटाइजर, ये चीजें, हाइजीनिक चीजें कंपलसरी लेनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे थे. तो बेसिकली ये बिजनेस का टाइम था, ऐसा लोगों को लग रहा है, बट बेसिकली मेरे हिसाब से ये सोशल वर्क का टाइम था. हम पैसा तो बहुत सारी जगह पे कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे लोगों को मदद करते हैं. तो मैंने वो भी किया, बहुत सारी जगह पे मैंने फ्री में मास्क, सैनिटाइजर, ये भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की. एंड हमारा एसोसिएशन रहता है, उसके थ्रू भी इंजेक्शन तो चाहिए, कोविड-19 की इंजेक्शन वगैरह थे, वो भी लोगों तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहती थी. क्योंकि कुछ कंपनीज ने हमारे लाइक सिप्ला हेल्पलाइन दी थी, जो उस पर कॉल करने के बाद वो इमीडिएटली इंजेक्शन जो कोविड में जो सीरियस कंडीशन में थे पेशेंट, उनको इफेक्ट हुई थी. तो अकॉर्डिंगली दिस विल वर्क. एंड फॉर सोशल मीडिया तो बहुत बूम मिल गई मुझे, क्योंकि बहुत अच्छा चला. जो जब लॉकडाउन था तब मैंने वीडियोस भी ज्यादा बनाए, और मैंने वही चीजों पे वीडियो बनाए, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिटेल पे क्या है, कोविड में क्या आपको
ध्यान रखना है, क्या करना है। मतलब ये कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाए कि कोविड के कुछ आने वाले, अब कोविड तो बहुत लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन कर देगा या फिर कुछ मेडिसिन आके अब सब खत्म कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं बना। जो Yeah. रियल है, जो फैक्ट है, यही चीजें मैंने बनाए। इससे लोगों को रियल चीजें पता चल जाती है। तो इससे तो ग्रोथ तो मिल गई। एंड आफ्टर सारी दुनिया को ऑनलाइन का पता चल गया कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया ऑनलाइन चल रही थी। सो ऑनलाइन बिजनेस भी बढ़ गई, शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। सारी बिजनेसेस खुद की एप्लीकेशन बनाए, खुद की वेबसाइट बनाई। इतनी ज्यादा अभी डिमांड है कि हर एक बिजनेस ऑनलाइन है और नहीं है वो भी करने जा रहे हैं। तो इवन दो कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, हॉस्पिटल हो, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस हमेशा जरूरी है। और यही सिखाया हमको कोविड-19 ने। सो बेसिकली यही बोलना है कि अपडेशन इज इम्पोर्टेंट। ये कोविड-19 वर्स्ट था, लेकिन 2021 इज गुड होप। एक्चुअली इसके आगे हमको बहुत सारी चीजें सिखाई, वो अप्लाई करनी है। एंड देन आफ्टर वी विल मूव टुगेदर। Right. One thing I learned from, actually I didn't learn. I'm not trying to brag about myself, but I'm a very patient person. मेरे में पेशेंस बहुत है। तो somehow कोरोना का पूरा पेंडेमिक, आई वॉज इन माई एलिमेंट कि मेरे को मालूम था कि अगर प्रॉब्लम है, और मे बी आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस वेयर वर्स्ट केस सिनारियोज आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो मेरे लिए थोड़ा अच्छे वे में नहीं बोलूँगा, बट आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर स्टफ लाइक दैट। बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु didn't know how to handle it, especially even people who had jobs, right? And they had to sit at home, or maybe a lot of people lost their jobs, or they were working from home. And छोटी सी चीज़, कई लोग ऐसे भी थे कि उनसे घर पे बैठे ही नहीं जा रहा था, So yes, this whole thing was a total learning experience, and anything can happen. As you said, हर चीज़ का रीज़न होता है। तो this was our, I would say, World War III, and मेरे को ये भी लगता है कि हमारे जनरेशन को ये देखना चाहिए था इन अ वे। मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होना चाहिए था, बट लोगों को एक्सपीरियंस ये चीज़ करनी तो थी। एंड आई एम हैप्पी कि दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो। इससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो आई हैव नथिंग टू से रिगार्डिंग दैट। बट a lot of people learned a lot of things, right? And yeah, आपका सोशल मीडिया का भी मेरे को याद है, there were a few colleagues of mine, they were in social media marketing. तो उनका सबसे ज़्यादा बिजनेस ऊपर गया है the moment this lockdown happened, because every other brand was looking, क्योंकि किसी का बिजनेस था नहीं, सब प्रमोशन मार्केटिंग चल रही थी, and social media marketing was on top at that time. I had a few friends who, they were the only people who were busy throughout the day. एक फार्मा इन द सेंस की मेडिकल रिलेटेड, this social media, and these were the only two, and grocery stores. बस यही चल रहे थे उस टाइम पे, according to me. Okay, so all right, we're coming down to the final question. Actually, please give us an insight into your mission for 1,000 pharma entrepreneurs, and what do you want to achieve from it? Yeah. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए मैसेज ये है कि रुकना नहीं है। जहाँ से आपकी सोच स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट करना। आपके पास रिसोर्सेस है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कैमरा, माइक, स्टैंड, ये सारी चीजें मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। जहाँ से मैं स्टार्ट, मैं घर पे जहाँ पे था वहीं से स्टार्ट किया। सो इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो मुझे यही आपको बोलना है कि जहाँ से आपकी सोच आपको करना है कि यहाँ से आपको मुझे करना है, तो उसी टाइम से करो। रुकना किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी सक्सेस मिलेगा। तो मुझे कुछ चीजें यहाँ पे आप न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए बतानी है जो
चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। पहला है आपको नॉलेज होना चाहिए। हर एक चीज का नॉलेज, जो चीज आप करना चाहते हैं उस चीज का नॉलेज, सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन एक चीज में आप परफेक्ट होने चाहिए 101%। एंड देन डेडिकेशन। डेडिकेशन होना चाहिए, रोज आपको इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि उन चीज में आप रेगुलर अपडेट लेके जाओ और आप एक ऐसी इमेज बनाओ कि उस नाम के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, पहला ऑप्शन आप ही होंगे, आप Hmm. ही और आप। देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये काम आपको एक दिन दो दिन का नहीं है, आपको बहुत दिन तक करना है, कंटिन्यूअसली करना है। और रोज करने के बाद आपको वो लाइफ में आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चौथा पार्ट है करेज, कि आप इतना करेज आप में होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपको ये करना ही है, कितनी फॉल Hmm. डाउन हो जाए अप हो जाए तो करना ही है। सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी न्यू एंटरप्रेन्योर, क्योंकि जितने स्टार्टअप है उसमें से आपको पता है कि मोर देन 90% स्टार्टअप आर फेल्ड। क्योंकि Hmm. होता है कि ये चीजें आप में नहीं होती, इवन दो यू हैव इन्वेस्टमेंट, यू हैव इन्वेस्टर्स, योर आइडिया इज गुड, इनोवेटिव, बट Hmm. बाकी चीजें जो रहती है, माइंड सेट जो आपका रहता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस रन के लिए सक्सेसफुल। तो Hmm. दिस इज फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर बेसिकली। तो आपको ये चीजें रखनी है। देन अबाउट 1000 फार्मर एंटरप्रेन्योर मुझे करके मतलब क्या मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी कंट्री मेक इन इंडिया जो हमारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या रहता है कि हम बहुत कंट्री पे डिपेंड है फार्मा इंडस्ट्री। बहुत सारी कंट्रीज एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, हम वो इम्पोर्ट करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस करती है, हम वो इम्पोर्ट करते हैं। न्यू इनोवेशन हमारी इंडिया में आते हैं बिल्कुल नहीं आते। आर एंड डी Yeah. रिसर्च सारा बाहर आता है। हमारी कंट्रीज के ही स्टूडेंट्स बाहर जाके रिसर्च करते हैं और उन कंट्रीज का नाम आता है, हमारी इंडिया का नाम नहीं आता। Hmm. इंडिया मोस्टली हम इनोवेशन में बहुत ही कम है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है इनोवेशन के लिए, बहुत लोग है, इतनी आइडियाज है। मैंने बहुत एक इतने सालों में इतना एक्सपीरियंस किया इन सालों में कि इतने इनोवेशन लोगों के पास है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो Hmm. उसके लिए अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपके पास इतने रिसोर्सेस आ गए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस खड़े हैं आपके लिए, आपको Hmm. सिर्फ वहां तक जाना है। लोगों Hmm. के पास इन्वेस्टमेंट है, लोग करना चाहते हैं कि नया कौन इतना इनोवेशन कर रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है, इतने सर्च में मार्केट में भी है, बट आपको इतना कैपेबल आपको बनाना होगा, इतना नॉलेज और डेडिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आपको पूरा सोच आपके पीछे लग जाएगा। जैसे आपकी सोच होगी वैसे आपका लाइफ चलता रहेगा। सो अकॉर्डिंगली अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपकी सोच उस लेवल पे जाती है। और अगर आप 1000 फार्मा एंटरप्रेन्योर हमारे इंडस्ट्री में बन गए, तो किसी कंट्री पे, किसी भी कंपनी पे बिल्कुल जरूरत नहीं डिपेंडेंसी रहने की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी हो तो उसको हम खुद सर्व कर सकते हैं। Yeah. सो यही इंपॉर्टेंट मैसेज है। या तो जरूरी नहीं है किसी कंट्री पे या किसी भी चीजों पे डिपेंड रहने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी जरूरी नहीं होगी आगे गवर्नमेंट को, अगर हम ये इनिशिएटिव क्रॉस कर सकते Ah, right. Because even so, my father is also he's a businessman. तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि अभी राइट नाउ जो ये मेक इन इंडिया का पूरा इनिशिएशन चल रहा है, तो this is the best time to grab that opportunity. Even if you want to, हैं। right now, under this Modi rule, they're giving out loans to startups for this Make in India thing right now, easily. So, right, continue. गवर्नमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड 3000 करोड़ टू स्किल डेवलपमेंट इनिशियल, ये लास्ट 2021 का बजट है उसमें। Hmm. जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं, इनोवेशन करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको वो लेना चाहिए। और Hmm. बहुत ही इजी है, अगर आपका इनोवेशन इतना हाई लेवल तक अगर जा सकता है तो वो आइडिया आपको आगे लेके आनी चाहिए। क्योंकि यही बढ़िया टाइम, बेस्ट टाइम फॉर Exactly. स्टार्ट। Right. All right, Amit. I think a lot of our viewers understood what we're trying to talk about. So the whole message and the whole summary of this interview was कि जो भी हमारे थोड़े बहुत viewers देख रहे हैं अभी, that we wanted to motivate people to basically start a business or at least get into that puddle, right? Uh, Amit as himself is he is very um
fortunate enough, and because he's thoda sa from the pharmaceutical backline, and that's where his niche is. So he can always explain anything regarding to starting up a business, consulting you the right way. And maybe later on, if the viewers want कि हम एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस या टॉपिक के बारे में बात करें बिजनेस रिलेटेड, फिर हम कर सकते हैं. सो बिकॉज आवर मेन एम टुडे वाज कि हम थोड़ा सा मोटिवेट करें लोगों को दैट इफ यू लुकिंग इनटू स्टार्टिंग अप योर ओन बिजनेस, तो यू शुड जस्ट गो फॉर इट. राइट. Right. So how did you like the show, Amit, till now? Yeah, it's really good actually. ये एक्सपीरियंस मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है. ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जर्नी कैसे रही. मैं मेरे चैनल पे कभी नहीं बताता बिकॉज ये मेरे खुद की मोटिवेशन मैं आपको नहीं दे रहा. आप अगर बहुत सारे व्यूअर्स लोग अगर आपके चैनल से जुड़े हो तो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन मिल जाएगा कि जीरो से हम कर सकते हैं और आप इंफिनिटी तक जा सकते हैं. इतनी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिर्फ ग्रैब करने की आपको यहाँ पे विजन होनी चाहिए. Right. It's really nice to actually have a good हमारा जो कॉन्वर्सेशन था बहुत ही अच्छा रहा और हाँ. बहुत ही प्रोफेशनल वे से मैंने भी बात कर रही थी कि कैसे फार्मा में एंड नॉट ओनली इन फार्मा, बाकी सारी बिजनेसेस में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है. तो ये चैनल से आप जो कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव. आई होप यू कैन कंटिन्यू as much as you can to motivate the people and get them into the right path. I'm trying my best. I'm trying my best. Let's hope all of this works out. So okay guys, so if you like this video, please subscribe right now. Subscribe to Amit's YouTube channel as well, जिसका पूरा नाम है Things by Amit. Right. And you can also follow him on Instagram. I'll put the link in the bio below to the YouTube channel and to the Instagram, because he is active on Instagram. And if you have any queries regarding anything, or if somehow you're not able to reach to him, so I can do my effort so that your message can be reached out to Amit. And again, Our mail ID is also there. yes. I'll link down Yeah. all of the credentials in the description box below. And yes, Amit, this was our time. Thank you so much for coming again. And My if the pleasure. if the viewers want, we will have another show, so that अगर हमने किसी चीज में डेप्थ में बात करनी है तो हम थोड़ी और डेप्थ में बात करेंगे. Right. So all right, Amit, thank you so much. Yeah. All right. Thank you.